Bismillahirrahmanirrahim. So, beta, for today we will be doing October November 24, paper 2, variant 3. And beta, specifically in this paper, we will be doing the second case, which is vegan burger. And if I look at the questions A, B, C, currently up to where we have covered, we can easily attempt A, B, and C. डी की आउटलाइन में प्रोवाइड कर दूंगा. डी अभी हमने कवर नहीं किया है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कैनिंग ऑफ द केस एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. ठीक है. केस इज व्हाट? वीगन बर्गर. लेट्स स्टार्ट. बेटा जिसकी जो क्वेरीज हैं, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, चैट बॉक्स पे मेंशन कर देना. आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स. VB is an established vegan burger chain in country X. अच्छा बेटा, for those of you who don't know what is vegan, which means they do not use animal products. Its unique selling point, something which is different, is what? High quality and good value vegan meals. Hilda, the managing director, grew the business without external investment. So up till now, all the money which has been invested is what? Internal. And within 5 years, had 10 restaurants in north of country X, which means in 5 years, 10 restaurants, which means that the business is what? Successful. VB was featured in a documentary exploring successful entrepreneurs in country X. Okay, ये lines confirm कर रही है that the business is successful. This boosted VB's national brand awareness. So now people know about this brand. As a result, VB changed its objective from developing brand awareness to increase market share. अब जाहिर सी बात है, when people know your brand, so आपका objective achieve हो गया. Now your objective is what? To increase market share. More customers buy from you. VB chose a franchise model to meet this objective. यानी ये decide कर रहे हैं. Now they are going to expand their business on the basis of the franchise model. They are going to sell their franchise. VB sold 25 franchise licenses in country X in 5 years. अब देखो, do remember one thing in mind. Beta, when you expand on the basis of the franchise model, it is quite exponential. You can grow at a very fast pace compared to when you grow yourself. 2 years ago, primary market research, it is what? When you go into the market and you conduct the research yourself, indicated pizza was a popular fast food in country X. VB added vegan pizza to its menu. Again, pizza है, पहले burger था, pizza में आ गए, and they are selling what? Vegan pizza. Each pizza oven had a significant capital cost. Okay. And required on-the-job training of the employees, which means better capital expenditure was needed. VB invested in a 6-month national television marketing campaign to promote the new menu item, which was the pizza. And the data is given. Fixed cost is given, variable cost is given, selling price is given. I think break even calculation नीचे दी हुई है. Vegan pizza has been sold by VB for 2 years. Tony, the business development manager. Basically, business development manager is the person responsible for getting the business into new markets, increasing sales, exploring new opportunities. Provided sales data for these 2 years. Each restaurant sells on average 500 pizzas and 4,500 burgers per month, which shows that burgers are more popular, but pizzas are also selling. Tony is worried that Patel's Pizza, an established pizza franchise, is more popular. So someone is more popular than this business. Tony has suggested removing pizza from the menu. Now he's saying that pizza हटा दो and pizza oven को repurpose करके उसमें कुछ dessert बनाओ. The oven can be used for something else, such as apple pies that complement the main burger meal. Hilda wants to continue marketing pizza, vegan pizza. Hilda, who is what? The original owner. As vegan food is currently very popular and the brand needs time. ये बोली time लगेगा. अच्छा बेटा, बेटा A का पार्ट 1 है. चैट बॉक्स में जरा जल्दी से सारे एक्टिव हो जाओ. वन फीचर ऑफ अ फ्रेंचाइज. देखो, मैंने आप लोगों को ये बात बहुत दफा बताई है दैट बेटा,
जब तुम्हें स्पेसिफिकली फीचर याद ना आ रहा हो, डेफिनेशन में से 1 पॉइंट डाल दो, डेफिनेशन में से क्या डाल दो, 1 पॉइंट डाल दो। तो बताओ बेटा क्या लिखेंगे? जी बेटा, 1 फीचर ऑफ फ्रेंचाइज क्या होगा, जल्दी से लिखो। अच्छा, रैपिड, बेटा देखो उसका बेनिफिट नहीं बताओ शायान, सवाल पूछ रहा है फीचर ऑफ फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज में होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन का 1 लाइनर लिख दो बेटा। आप लिख सकते हो दैट द बिजनेस नीड्स टू पे रॉयल्टीज टू द फ्रेंचाइजर, इस तरह लिख सकते हो, शाबाश। और बेटा और क्या आ रहा है माइंड में? बेटा देखो, फ्रेंचाइज इज द यूज ऑफ बिजनेस नेम, लोगो एंड ट्रेडिंग मेथड, ये भी लिख सकते हो, ऑफ एन एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, तो बेटा आप फ्रेंचाइज में बहुत सारी बात लिख सकते हो बेटा। क्या क्या आ सकता है हमारे पास? द शेयर ऑफ प्रॉफिट, द फ्रेंचाइज फी, ट्रेनिंग सपोर्ट। बेटा प्रॉफिट शेयर नहीं लिखेंगे रहीम, हम लिखेंगे बेटा रॉयल्टीज नीड टू बी पेड टू द फ्रेंचाइजर, देर इज लीगल डॉक्यूमेंटेशन टू यूज द बिजनेस नेम लोगो, ये लिख सकते हो। सही है, फ्रेंचाइजर प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, ये लिख सकते हो। सबके लिए क्लियर है बेटा? आप देखो जो मेरे पास आंसर आए चैट बॉक्स में, शायन रैपिड ग्रोथ, ब्रांड इमेज, बैठे बेटा आपका बिला हो जाएगा, 1 मार्क चले जाता। शामी रॉयल्टीज इज राइट, यहां पर आपको मार्क मिल जाता। प्रॉफिट शेयर नहीं होता बेटा, ठीक है रहीम, ये गलती मत करना। अब बेटा देखो 3 मार्क का सवाल है, एक्सप्लेन द टर्म मार्केट शेयर। बेटा 1 मार्क फॉर नॉलेज एंड 2 मार्क फॉर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन भी डेवलप करनी पड़ेगी, मेरा 3 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो बेटा 3 मार्क का सवाल है, जरा आप लोगों में से कोई चैट बॉक्स में ट्राई करेगा लिखना, मैं 2 मिनट वेट करता हूं, लिखो, वरना फिर मैं डिक्टेट करवाता हूं। एक्सप्लेन द टर्म मार्केट शेयर, लाइन 6 के अंदर मार्केट शेयर लिखा हुआ है बेटा, शाबाश, ट्राई करो चैट बॉक्स में। बिल्कुल लिख सकते हो, शाबाश, लिखो पे, ट्राई करते हैं। सर सिर्फ नहीं बेटा, 3 मार्क में डेफिनेशन नहीं होती, 3 मार्क का सवाल है ना, उसको आगे समझाना भी होता है, एक और कनेक्शन भी बनाना होता है, 3 पॉइंट्स होने चाहिए। सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे बेटा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। Market share is the number of sales held by one brand or business. If a business has a higher market share, may be more popular, thus they may need less promotion. अच्छा शाबाश आयशा बेटा, is a share between two individuals who, नहीं बेटा क्या लिख रहे हो, रहीम गलत लिखा है बेटा। ये देखो बेटा, जो बेटा शहीर भी कह रहा था फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, और मजे की बात फॉर्मूला की सिर्फ इसने 2 मार्क्स दे दिए हैं। ठीक है, शहीर ने लिखा है द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ बिजनेस होल्ड्स इन द मार्केट, सेल्स बोलेंगे बेटा, शेयर नहीं बोलेंगे। If high market share, then business would become more competitive. Then the business might lose its competitiveness. बात तो सही कह रहे हो बेटा। तो बेटा इन्होंने क्या क्या लिखा है 3 मार्क के लिए, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। फॉर्मूला में ही आपको 2 मार्क्स दे दिए इसने। दूसरा एप्लीकेशन कैसे बताइए? एन इंक्रीज मार्केट शेयर गिव द बिजनेस मोर पावर, जो आप लोग कह रहे थे बेटा, बिल्कुल सही कह रहे थे। द बिजनेस हायर मार्केट शेयर इज द मार्केट लीडर, बिल्कुल सही कह रहे थे। इसको इन्होंने बिजनेस से भी लिंक किया है, लेकिन जो ए वाले पार्ट्स होते हैं उसमें आप मर्जी है लिंक करो या जर्नलाइज करो। ठीक है, देखो एक जर्नलाइज एग्जांपल भी है, एग्जांपल ऑफ मार्केट लीडर टू इलस्ट्रेट मार्केट शेयर, एग्जांपल टेस्को इज द मार्केट लीडर ऑफ द यूके सुपरमार्केट इंडस्ट्री। तो एक जर्नलाइज एग्जांपल भी आप दे सकते हो, बट इन ओनली इन पार्ट ए, बी में नहीं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते थे मार्केट शेयर
is the proportion of sales the business has from the total sales of the market, और नीचे फॉर्मूला लिख दो, sales of the business upon total sales of the market times 100. फिर आप आगे लिख सकते हो the higher the market share, the more the sales the business has which will result in greater profitability. जिस तरह आयजा ने प्रमोशन वाली बात करी वो भी बिल्कुल वैलिड थी, आप कंपेरेटिवनेस की वाली बात हुई बिल्कुल बिल्कुल क्लियर थी. तो कम से कम 3 कनेक्शन पॉइंट्स होने चाहिए. आई होप सो बेटा सबको क्लियर होगा. ये सवाल बोल रहा है रेफर टू टेबल 2.1, कैलकुलेट वीबीज ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट पर मंथ पर रेस्टोरेंट. ठीक है, तो मुझे जरा ब्रेक इवन निकाल के दिखाओ बेटा 2.1 से. ब्रेक इवन बेटा देखो बहुत सारे लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है. डायरेक्ट नहीं कर सकते तो पहले कोशिश करो फॉर्मूला लिखो. ब्रेक इवन 2 स्टेप्स के अंदर होता है. सबसे पहले बेटा वी नीड टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, which is what, selling price per unit minus variable cost per unit. Sir ji, selling price per unit is 6, variable cost per unit is 2, which is what, 4. contribution $4 आ रहा है. फिक्स कॉस्ट हमारी 1000 है, तो 1000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यस 250 पिज्जाज अगर हम सेल करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन हो जाता है. और बेटा डेटा मुझे बता रहा है कि हर रेस्टोरेंट ऑन एवरेज 500 पिज्जा सेल करता है, मतलब हम ज्यादा ही सेल कर रहे हैं, और बर्गर्स तो फिर अलग हैं. ठीक है बेटा, तो 250 इज द राइट आंसर. बेटा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है. तो बेटा अभी हमने क्या करा, ब्रेक इवन की कैलकुलेशन करी, दोबारा एक दफा स्टार्ट करते हैं. बेटा ब्रेक इवन में हमारा पहला स्टेप ही क्या होता है, बेटा ब्रेक इवन में हमारा पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन. सर जी बेटा हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सर सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, $6. सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी, $2. तो बेटा 6 - 2 कंट्रीब्यूशन कितना आया, $4. मतलब हर पिज्जा अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद फिक्स कॉस्ट को पूरा करने के लिए $4 प्रोवाइड करता है. पहली बात. सर द नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट, जहां से ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन. तो सर जी फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, $1000. $1000 को डिवाइड बाय $4 करा हमने, तो आंसर आया 250 पिज्जाज. मतलब हम 250 पिज्जाज सेल करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा. ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी. आंसर टैली भी कर लेते हैं इसका बेटा. बिल्कुल बेटा 250 यूनिट्स पे 3 मार्क्स हमें मिल गए हैं. ठीक है बेटा, लेकिन बेटा ये देखो यहां पर गड़बड़ क्या है, समझते हैं हुआ क्या क्या है. फॉर्मूला पे 1 मार्क दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही. बेटा 250 यूनिट्स प्रॉपर लिखना, 250 पिज्जाज प्रॉपर लिखना, ये ध्यान रखना बेटा. ठीक है, कोई वैल्यू है यूनिट में गड़बड़ करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. अच्छा बेटा किसी को ब्रेक इवन नहीं समझ में आता, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, आप है ना फाइनेंस वाले चैप्टर में जाओ, एएस के सॉरी यूनिट 5 फाइनेंस में जाओ, वहां पर आपको कॉस्टिंग की कैलकुलेशन की पूरी वीडियो मिल जाएगी, एक दफा देख लो, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा. बेटा बी का पार्ट 2 है हमारे पास. सवाल बोल रहा है एक्सप्लेन वन रीजन फॉर वीबी टू हैव एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन. अब बेटा मैंने ए में बोला था जर्नलाइज कर सकते हो, अब आफ्टर बी जर्नलाइजेशन नहीं है, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द केस. तो सर मुझे बताओ क्यों वीबी को एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन की क्यों नीड है बेटा वीबी को, बताओ बेटा मुझे चैट बॉक्स में, शाबाश जल्दी से. एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए हमें. जी बेटा. अच्छा बेटा किसी को नहीं पता, सही है बेटा, एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है. डन बेटा. दूसरी बात बेटा, प्राइस सेट करने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप लोग. ठीक है,
तो बेटा बिल्कुल टारगेट सेट करने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बेटा ये तो नॉलेज पॉइंट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये तो नॉलेज पॉइंट हो गया। ठीक है, हमें इसको क्या करना है बेटा, अब आगे बिल्ड करना है ताकि प्रॉपर मार्क्स मिले। तो बेटा ट्राई करते हैं, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, जरा लिखो बेटा अपने पास। वीबी नीड्स वीबी नीड्स accurate cost information. VB needs accurate cost information so they can set the right price. So they can set the right price for their vegan burgers and pizzas. For their vegan burgers and pizzas, as if the price set as if the price set is low, if the price set is low, VB VB will not be able will not be able to recover will not be able to recover its cost, due to which it might face due to which it might face financial difficulties. It might face financial difficulties and may even fail and may even fail. बेटा चेक कर लेते हैं मैंने जो लिखवाया है वो सेंस बनाता है या नहीं बनाता। ठीक है बेटा, चलें बेटा। बेटा टू मेक प्राइसिंग डिसीजंस, नॉलेज का एक मार्क, तो बेटा मैंने बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल मैंने आगे लिखा सो दैट कॉस्ट आर कवर्ड, एप्लीकेशन भी उसकी हो गई, और बेटा उसको फिर डेवलप भी करना है। ठीक है, तो जिसमें बेटा मैंने पिज्जाज और बर्गर्स की बात करी। ठीक है, तो यहां पर हमारे 3 मार्क प्रॉपरली कवर हो गए। तो बेटा 3 मार्क के सवाल में इन चीजों का प्रॉपर ध्यान देना है, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यूजुअली बच्चे 3 में से 2 लेते हैं। अच्छा बेटा, नाउ बेटा द क्वेश्चन इज एनालाइज 2 बेनिफिट्स फॉर वीबी ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा सिंपल सा सवाल है, हमने अपने सिलेबस में से 3 तरह की ट्रेनिंग पढ़ी है, इंडक्शन, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। सर अगर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था each pizza oven had a significant capital cost and required on the job training of employees. So बेटा वीबी को क्या बेनिफिट होगा बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, जरा चैट बॉक्स में मेंशन करो, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। शाबाश बेटा, चैट बॉक्स में मेंशन करो बेटा बेनिफिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा बिजनेस को क्या फायदा होगा उसको आगे डेवलप करो ना। लेस एक्सपेंसिव, आई डोंट थिंक सो। लो कॉस्ट होती है, बिल्कुल है, सही है शहीद, इसको आगे बिल्ड करो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से एक बड़ा फायदा होगा दैट यू कैन ट्रेन द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू योर नोन नीड्स। एज बेटा द पिज्जा ovens are expensive, so VB can train the workers
specifically how to use these pizza ovens so they do not damage it, and the ovens can have a longer life. And when the ovens will be working perfectly fine, the pizzas can be easily made and delivered on time. No delays in deliveries to the customers, ensuring customer satisfaction. As already there is a big player in the market which is Patel's Pizza, so ensuring timely deliveries is very important for the business. तो ये एक प्रोग्राम एक पैराग्राफ हो सकता है हमारा. लेकिन वो अब देखो यहाँ पर है ना, P2 में सबसे बड़ा ब्लेंडर जो हमारे बच्चा करता है ना, जर्नलाइज कर देता है. बेटा P1 नहीं लिख रहे तुम लिख रहे हो P2. तो बी वेरी केयरफुल हाउ यू राइट योर आंसर्स. अगर तुम्हारा आंसर्स अप्रोप्रिएट नहीं है, केस से लिंक नहीं है बेटा, यू माइट लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स. ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना है आपने. सही. अच्छा बेटा जी, आगे बताएं. कोई और ऑन द जॉब ट्रेनिंग और कैसे हेल्प करेगी? जी बेटा. किसी और के पास कोई और इनपुट आ रहा है? क्या हो गया यार, बड़े ढीले हो तुम लोग. देखो बेटा, लो कॉस्ट देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और फिर ऑफ द जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी. लर्निंग वाइल डूइंग द जॉब. शाबाश. शाबाश आइजा, सेंस बनता है. ठीक है. ट्रेनिंग टेलर्ड टू वर्किंग एट वीबी, स्पेसिफिकली बिजनेस के हिसाब से होगी. बिजनेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. चाहिए. वर्क लाइफ बैलेंस कैसे इंप्रूव करोगे इससे? हाँ. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही मिल सकता है बेटा, बिल्कुल. तो एक काम करते हैं बेटा, ये वाला आंसर बनाते हैं. अपने रजिस्टर्स उठाओ बेटा, पेन हाथ में उठाओ. लिखते हैं बेटा, कुछ बात करते हैं. चले बेटा, बिस्मिल्लाह. द बेनिफिट टू वीबी. द बेनिफिट टू वीबी of on the job training would be of on the job training would be that the workers will exactly be taught will exactly be taught according to the need need of the organization, according to the need of the organization, such as in the case with on the job training. With on the job training, the employees can directly be taught the employees can directly be taught how to use how to use the pizza ovens how to use the pizza ovens properly as the competitor Patel's Pizza Patel's Pizza is more popular is more
popular, so on the job training may ensure pizza is made according to the right requirements which would ensure customer satisfaction enabling VB to achieve its objective of increased market share. तो सर बेटा ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ. अब ऐसा ही एक और पैराग्राफ डेवलप करना है. आप लो कॉस्ट की बात भी कर सकते हो, आप बेटर बॉन्डिंग ऑफ वर्कर्स की बात भी कर सकते हो, टीम बिल्डिंग की बात भी कर सकते हो. अरे शहीर बेटा, जो आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हो ना, बहुत ही ऊपर से आ रही बात, समझाने में फंस जाओगे. आई एग्री टू इट, लेकिन बेटा इतना रेलिवेंट नहीं बैठेगा ये. तो बेटा इसी तरीके से आप एक और पैराग्राफ इसके अंदर डालोगे तो इंशाल्लाह आपको ये 8 मार्क्स पूरे आराम से मिलेंगे. क्योंकि आप ये कह सकते हो बेटा कि ये चीपर मेथड है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, कॉस्टली होगी, और पता चला उस ट्रेनिंग के बाद हेड हंटिंग हो गई, वर्कर छोड़ के चले गया तो और लॉस होगा. ठीक है, तो बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंश्योर करेगी कॉस्ट कम हो, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ गई तो आपको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, और अगर डिमांड इलास्टिकली वीगन फूड के लिए तो सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है. तो यू कैन structure it in any way possible, but application and then chain reactions are very much important. बेटा हम कौन सा कर रहे थे, अक्टूबर नवंबर 24 था, पेपर 2-3 था और ये सेकंड केस था. आई होप सो बेटा ये समझ में आया होगा. ठीक है, कोई क्वेरी आ रही है अब तक? क्लियर है बेटा? ये कोई सवाल, कोई क्वेरी बेटा? अच्छा बेटा, ये वीडियो मैं वापस अपलोड कर रहा हूँ, जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया है, ठीक है बेटा, वो दोबारा ये वीडियो देख के ये वाले सवाल वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं. और फिर बेटा कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो तो बेटा मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेना. चले बेटा, आज का सेशन फिर यहीं तक था.